Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering up the newspaper for 22nd November 2024. So first of all, we are seeing that the problem that we have been facing in Myanmar, children are making up 40% of the displaced persons, and how it is impacting the children due to the ongoing conflict, due to the political instability because of the military coup that occurred in 2021. So 40% of the displaced population, they are comprising of children. Approximately 1.9 million people have been displaced due to the violence and instability. So report, it also emphasizes that there is long-term devastating impact on the children. So there is lack of basic amenities, that is shelter, education, healthcare, and also basic services. So there are also security concerns regarding the arms smuggling and insurgent activities that could escalate the India's borders also. Hmm. The next is regarding two cops named Seema Devi and Suman Huda, who pulled off a commendable feat as they tracked 104 children who were missing in just 9 months. Hmm. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल लीडरशिप का रोल इन दी लोकल गवर्नेंस ऑल्सो, उनका डेडिकेशन, उनका ट्रस्ट बिल्डिंग इन कम्युनिटी पुलिसिंग, मेटिकुलस ट्रैकिंग उन्होंने की अक्रॉस हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, एंड दे ऑल्सो गेन द ट्रस्ट ऑफ लोकल्स थ्रू देयर परसिस्टेंस एंड एम्पैथी, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिली टू locate these children in challenging areas, also such as railway stations. So cases including child trafficking, runway incident. So careful coordination with the authorities and the families, उनके वजह से हम बोल सकते हैं कि इन्होंने 104 मिसिंग चिल्ड्रंस को ढूंढा. तो ये दिखाता है कि कैसे इफेक्टिव मॉडल होना चाहिए ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, एंड कैसे आप इंस्पायर कर सकते हैं. तो यंग जनरेशन, नॉट इवन जस्ट फॉर द गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर द बॉयज, उनके लिए ये एक रोल मॉडल बनती है. एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रास रूट लेवल पे ऐसे कम्युनिटी पुलिसिंग होना. They felt immense pride and relief in being able to reunite the children with their family. Then Green Hydrogen Hub, India's largest green hydrogen facility by NTPC at Pudi Madaka near Vishakhapatnam. It will be the largest in India. 240 tons per day की capacity होगी, and it will be supporting 5 gigawatts of renewable energy. तो सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने में इट विल बी हेल्पिंग अस इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. Facilities will also be provided for production, storage, distribution of green hydrogen. So कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी को अचीव करने में हमें हेल्प करेगा. The next is regarding Swachh Industrial Park Awards. स्वच्छ भारत अभियान के अंदर स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क कैंपेनिंग एंड इन अवार्ड्स को दिया जाता है ताकि क्लीनलीनेस को हम प्रमोट कर पाए स्पेसिफिकली इन द इंडस्ट्रियल पार्क रीजन. तो 104 गवर्नमेंट पार्क्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स जहाँ पे डिफरेंट चीजों के ऊपर जज किया जाता है, दैट इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
जैसे देख भी सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट चैंपियंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। असम के अंदर हम देख सकते हैं असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हम बोल सकते हैं कि एक इंटीग्रल पार्ट है स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क्स आल्सो। Then why US court filings, SEC disclosures are far more serious than Hindenburg allegation? So basically जो अडानी ग्रुप है, it has been facing legal scrutiny in United States, जहाँ पे कोर्ट में फाइलिंग की गई है। and जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, वहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है, जहाँ पे हाईलाइट किया गया है एलिगेशंस ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस एंड उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स को क्वेश्चन किया गया है। तो लॉ सूट यूएस के अंदर लेके आया गया है इन एलिगेशंस को लेके। एंड चार्जेस में बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ कंपनी ओनरशिप, ऑफशोर शेल एंटिटीज के थ्रू, देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, also there is improper related party transactions. So ये जो accusations हैं they go beyond the Hindenburg's report and suggest करता है कि global scale पे जो fraud है it is involving billions of dollars. तो specific allegations जो हैं it also includes misleading the disclosure, inflating the value of shares, या फिर जो भी benefit हो रहा है उसको inflate करना through the government contracts, जैसे कि entities based in Mauritius and UAE, they were linked to circular transactions which were benefiting the Adani entities. तो fraudulent schemes को ये दिखाता है, बट हम बोल सकते हैं कि इसका जो पूरे एलिगेशन का जो रिस्क है वो इंडिया के भी ग्लोबल फाइनेंशियल रेपुटेशन के ऊपर है, डायरेक्टली उससे लिंक किया जा सकता है इसको। इट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बाहर काम कर रही हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इज गोइंग बियॉन्ड एंड इट इज मोर सीरियस। देन नेक्स्ट इज फॉर वर्ल्ड फिशरीज डे, ऑब्जर्व किया जाता है ऑन नवंबर 21 एवरी ईयर, एंड हाईलाइट करता है दैट देयर इज नीड फॉर सस्टेनेबल फिशिंग एंड द लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटीज। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, जो कि ओशन करंट के ऊपर भी आता है। एंड जो जोन्स होती हैं जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर बनता है, जो कि फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनते हैं, वो उनका पैटर्न भी चेंज होते जा रहा है। तो डायरेक्टली फिशिंग कम्युनिटीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है। IUU, इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टिंग फिशिंग का चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट फेस कर रही है, तो उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें इंडिया के अंदर इनलैंड फिशरीज की बात हम कर सकते हैं। इनलैंड फिशरीज जो कि इनलैंड फिशरीज में ज्यादा प्रोडक्शन होती है रादर देन जब हम सी के थ्रू बात करते हैं। So there is need to move towards sustainable fishing. Then rock cut footprints, human figure dating back to megalithic period, unearthed at Kerala's Kanhirapoil. So prehistoric heritage को दिखाता है। 24 रॉक कट फुटप्रिंट्स एंड कार्विंग्स मिले हैं, मेगालिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। बेसिकली एंशियंट कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज कैसा था पहले के टाइम पे, उसको हेल्प करने में हमें, उसको समझने में हेल्प करेगा। एदकल केव्स इन वायनाड, वहां पे भी हम देख सकते हैं बुल फिगर्स हमें मिले हैं। रनिंग टाइगर नियर बंगलम गवर्नमेंट स्कूल हमें मिला है नीलस्वरम के पास। ह्यूमन फिगर मिला है चिमेनी अरियतिपरा कन्नूर के पास। सो हम देख सकते हैं कि मेगालिथिक पीरियड से रिलेटेड ये दिखाता है कि कितनी जरूरत है इन हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करने की। बेसिकली कैसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स
कि वर्शिप की जाती थी, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस कंडक्ट की जाती थी, कैसे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी देखी जाती है रीजन के अंदर, वो हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, देर इज नीड फॉर एन environmental health regulatory agency. So first of all, there is the challenge and there is an intersection of different challenges, जैसे कि environmental challenge and the public health challenge. So that is why we are saying that there is a need for centralized environment environmental health regulatory agency, EHRA. इंडिया जो है, it is experiencing increasing number of greenhouse gas emissions, air pollution, water pollution, and इसमें सबसे ज्यादा vulnerable हो जाता है जो होमलेस लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते घर के अंदर रहना, they people that are not having even the basic amenities. So there is lack of coordination between different agencies, जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ताकि इन इन्वायरमेंटल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए बोला जा रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड EHRA का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, and it would be instrumental in helping India to meet its commitment and also aligning the national policies with the global standards. कलेक्टिव एफर्ट हम कर पाएंगे टू टैकल द क्लाइमेट, जैसे कि हीट वेव्स के केस में हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिंक है दोनों ही सेक्टर्स का। इंश्योर कर पाएंगे कि हेल्थ सेंसिटिव क्लाइमेट एक्शन हम लें। सो सपोर्टिंग sustainable economic growth by also reducing pollution related diseases, पब्लिक हेल्थ को एनहांस करेगा एंड क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ ट्रांजिशन करने में भी हमें हेल्प करेगा। तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म की हमें जरूरत है। साइंस बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एविडेंस इन्फॉर्म्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो डेटा का इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, जैसे कि पुअर एयर क्वालिटी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स, हेवी मेटल एक्सपोजर जो होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, consequences from the climate change on the health system। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट भी लाना चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट के साथ। जैसे कि जितने भी प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, उनके साथ हमें इंटीग्रेट करना चाहिए हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट को भी, ताकि हेल्थ रिलेटेड रिस्क जो हैं फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज उनको हम मिटिगेट कर पाए। एक तरीके से ये एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स की तरह काम करेगा टू ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्यूमुलेटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को प्रमोट करेगा एंड कोलैबोरेट भी कर पाएंगे हम विद द इंटरनेशनल बॉडीज टू नेगोशिएट फॉर बेटर प्रैक्टिसेस। जैसे कि स्मॉग डिप्लोमेसी भी हमने देखा, तो उसको भी हम इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जापान की जैसे बात की जा रही है कि वहां पे जो मिनिस्ट्रीज हैं दे टैकल द पोल्यूशन, केमिकल सेफ्टी एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। वैसे ही जर्मनी की भी बात की जा रही है कि वहां पे कैसे फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है टू मैनेज टू मैनेज द पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। तो वो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें। जैसे जर्मनी का जो फेडरल एनवायरमेंटल एजेंसी है एंड जापान का जो एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, जैसे यूएस का, तो उनका भी अप्रोच यही है कि वो रेगुलेट करते हैं एयर वाटर क्वालिटी, मैनेज करते हैं वेस्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते हैं एंड साइंस बेस्ड असेसमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं। वैसे ही जर्मनी का जो फेडरल एनवायरनमेंट एजेंसी है वो भी फोकस करता है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पे, ताकि मैनेज कर पाए एयर को, वाटर को, वेस्ट रेगुलेशन एंड साथ ही साथ सस्टेनेबल एनर्जी को भी प्रमोट करें। वैसे ही जापान का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इट इज ऑल्सो वर्किंग रिलेंटलेसली टू टैकल पोल्यूशन, केमिकल सेफ्टी एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। सो कोलैबोरेट करते हैं हेल्थ को विद साइंस एजेंसीज टू मॉनिटर हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो इन्फोर्सिंग पोल्यूशन कंट्रोल, हाउ टू एड्रेस द अर्बन पोल्यूशन, हाउ टू एड्रेस द रेडिएशन लेवल। तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स का उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए इंडिया के अंदर भी हम बोल रहे हैं कि एक
एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी का सेटअप होना चाहिए। हम्म इसके साथ ही साथ सिटीजन्स को भी हम एडुकेट करें रिगार्डिंग एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क, कम्युनिटीज को एम्पावर करें टू एडवोकेट फॉर अ क्लीनर एयर, क्लीनर वाटर एंड फॉर हेल्दियर लिविंग कंडीशंस। तो सिटीजन बेस्ड इनिशिएटिव्स होनी चाहिए। एनजीओ का इसके अंदर रोल आएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो कि बॉटम से अप की तरफ जाएगी। लोकल बॉडीज, पंचायत, रोल ऑफ कम्युनिकेटर्स, जर्नलिस्ट, तो सभी चीजों के इंटीग्रेशन से ही हम बोल सकते हैं कि हम अकाउंटेबल इन्वायरमेंट बना पाएंगे। A bilateral investment treaty with a bit of change. So India and UAE bilateral investment treaty that was recently signed. वहां पे हम देख सकते हैं कि देयर इज अ डिपार्चर, जो बिट चेंज हुआ है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अर्लियर जो ट्रीटी मॉडल्स थे, बैलेंसिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विद द सॉवरेन पॉलिसी स्पेस, उसमें हमने देखा है कि देयर इज अ बिट ऑफ चेंज इन दिस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये जो बिट है इट इज बेसिकली एमिंग टू रिप्लेस 214 में जो इंडिया एंड यूएई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया गया था, एंड इट कुड आल्सो सेट द टोन फॉर ऑनगोइंग नेगोशिएशन जो कि यूके के साथ एंड ईयू के साथ भी होने वाले हैं। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हम बैलेंस करने की अब बात कर रहे हैं विद द स्टेट सॉवरेनिटी। क्या चेंजेस हुए हैं, बट कॉन्टिन्यूटी भी है बहुत सारी चीजें में। तो चेंजेस में वी आर मूविंग अवे फ्रॉम हेवी रिलायंस ऑन इन्वेस्टर एंड स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। उनका स्कोप लिमिट कर रहे हैं हम टू स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसके साथ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट दैट जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे दे मस्ट एस्टैब्लिश सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया फॉर ट्रीटी बेनिफिट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके अंदर ये आ जाता है कि इट विल बी प्रोवाइडिंग बेटर रेगुलेटरी क्लैरिटी। तो जो क्लैरिटी है इट विल बी मोर ग्रेटर नाउ। डोमेस्टिक पॉलिसी गोल्स को भी हम अलाइन कर पाएंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे गोल्स को भी हम अलाइन कर पाएंगे। सो बट कुछ कंसर्न्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि ये भी क्रिटिक किया जा रहा है कि जो ट्रीटी है इट इज लैकिंग प्रोविजंस फॉर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, जो कि इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टर्स के अट्रैक्टिवनेस को रिड्यूस कर सकता है। एब्सेंस है ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज, जो कि लिमिट कर सकता है इंडिया की एबिलिटी टू स्टैंडर्डाइज द इन्वेस्टर राइट्स डिफरेंट ट्रीटीज के बीच में। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज कर रहा है, बट अपनी जो सॉवरेन पॉलिसी मेकिंग राइट है उनको भी वो बैलेंस कर रहा है, लिटिगेशन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा है, एंड इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन में वो इससे स्ट्रेंथन होगी। So that is a bit of change in this bilateral investment treaty. Next is regarding a case of human trafficking, cab driver's double life from taxi to trafficking. The cab wasn't just dropping off passengers, but was transporting drugs to student hubs. तो हम देख सकते हैं कि कॉलेजेस वगैरह ड्रग से रिलेटेड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल होता है। तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उनका इसके अंदर रोल आता है। एंड जो ड्रग यहाँ पे हमें देखने को मिला है, लव ड्रग इसको हम बोलते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन, एस्टेसी, ऑल्सो नोन एज एमडीएमए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, उस वो रिलीज होता है विद सोशल, जो दैट इज एसोसिएटेड विद सोशल बॉन्डिंग, अटैचमेंट, इंटीमेसी। तो इट इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डीप इमोशनल कनेक्शन, एम्पैथी इंक्रीज हो जाती है, सेंसरी इनहेंसमेंट होता है, experience of touch, sound, and also sight. That is why there is a risk of addiction.
4 करोड़ वॉज सीज्ड। सो हम देख सकते हैं कि कितने बड़े नंबर पे जो हम स्टूडेंट कम्युनिटी भी है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म रिस्क भी है। देन नेक्स्ट, is social media doing more harm than good to democracy? How the social media platforms are impacting the democracy? Is it good or is it more bad? क्या वो strengthen कर रहे हैं democratic values को, या they are contributing more towards polarization, toward misinformation, and they're causing more harm? जैसे ट्विटर की बात की जा रही है, एक्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग स्पेसेस फॉर फ्री एक्सप्रेशन to being dominated by individual owners, which is raising concern over the influence it is having on the public discourse. So, पत्रिका सिन्हा है वो emphasize कर रहे हैं that there is need to be cautious about where and how people consume news. There is increasing control of these platforms by individuals with specific agendas. तो सोशल मीडिया जो है दे आर डेमोक्रेटाइजिंग द एक्सेस टू information, but they are also contributing to misinformation. Editorial accountability नहीं हो पाती है यहाँ पे. There is ease in spreading fake news. Harmful narrative जो हैं उनको spread करना बहुत easy हो जाता है, which are challenging the democratic ideals. तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स या फेसबुक उसको प्रॉब्लमैटिक बताया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को लिमिट करता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होने चाहिए, जैसे उसको अल्टरनेटिव बताया जा रहा है ब्लू स्काई। एल्गोरिदम बायस हो सकता है जो प्रायोरिटाइज करता है एंगेजमेंट ओवर फैक्चुअल कंटेंट, विच लीड्स टू इंक्रीज्ड पोलराइजेशन। सो हम बोल सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है इट इज प्लेइंग अ सोर्स ऑफ both the forces, the force of good and also the also acting as a tool for harm, जहाँ पे हेट स्पीच का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड फोर्स ऑफ गुड में हम बोल सकते हैं कि एक लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है टू डाइवर्सिफाई दी ओपिनियंस, टू बैलेंस। बट यहाँ पे जरूरत है हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स और जो अकाउंटेबिलिटी है उस प्लेटफॉर्म की उसको बैलेंस करने की। इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन है इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं सोशल मीडिया का। इंफॉर्मेशन सोर्स डाइवर्सिफाई हो पाता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो वॉइसेस है वो सुनी जाती हैं, वो भी सीन होती हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। बट साथ ही साथ नेगेटिव जो हार्म वाली साइड है वो भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जाता है सोशल मीडिया को, कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रियल टाइम में होता है, तो रेगुलेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड साथ ही साथ इन प्लेटफॉर्म्स का जो इन्फ्लुएंस भी है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो फ्री स्पीच को प्रमोट करने के साथ साथ हमें जरूरत है कि लॉ होना चाहिए टू एड्रेस दिस मिसयूज, ताकि फ्री स्पीच को भी हम हैम्पर ना करें एंड मिसयूज को भी हम कंट्रोल करें। इज दिल्ली बिकमिंग एन इनहैबिटेबल सिटी? सो दिल्ली के अंदर हमने देखा देयर आर केसेस ऑफ डेथ बाय ब्रेथ इन दिल्ली। जो एयर क्वालिटी थी इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली इट रीच टू सीवियर प्लस कैटेगरी। तो वो दिखाता है कि लेवल कितना हजार्डस लेवल तक पहुंच जाता है, स्पेशली जब विंटर आ रही है। स्टबल बर्निंग है इन द नेबरिंग स्टेट्स। ऑल्सो देयर इज व्हीकुलर इंडस्ट्रियल एमिशंस। दो पार्टिकुलेट मैटर दैट इज 2.5 एंड 10, उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है उनके लिमिट से। तो रेजिडेंट्स जो हैं दे आर फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग एयर, जो कि बट साथ ही साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज फेस किए जाते हैं।
समर्स में हम देखते हैं कि जो दिल्ली है, इट इज फेसिंग हीट वेव्स, वो भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। बट जब विंटर्स की बात आती है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सीजनल पोल्यूशन स्पाइक होता है बहुत ज्यादा, स्मोक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, पुअरर रेजिडेंट जो हैं, जो पुअरर रेजिडेंट हैं, दे दे आर लिविंग क्लोज टू द पोल्यूशन सोर्सेस। सो उनके लिए मुश्किल हो जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस करना। जो चिल्ड्रन एंड एल्डरली हैं बेसिकली, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर हो रहा है पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर से, तो पोल्यूशन लेवल जो है वो ओवर द इयर्स राइज किया है, डेटा में दिखाता है। डेथ के केसेस जो हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली दैट आर लिंक टू PM 2.5 एक्सपोजर, वो भी इंक्रीज हुए हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पोल्यूशन सोर्सेज जैसे कि स्टबल बर्निंग एंड व्हीकुलर एमिशन, वो मेजर रीजन है इसके पीछे। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, कार पूलिंग को प्रमोट करना चाहिए फॉर ऑफिसेज स्पेशली। जो चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ स्टबल बर्निंग, उसको एड्रेस करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव देना चाहिए फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। प्राइवेट व्हीकल यूज को जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना चाहिए। तो जो लाइफ स्कीम है, ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड साथ ही साथ जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क है वो हम कम कर पाए। इसमें हमने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, दे रिमेन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दी पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली। तो जो व्हीकल का भी नंबर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। पर डे दिल्ली के अंदर 1800 नई व्हीकल्स जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं इन 2024। 1.5 करोड़ टोटल व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया, दे आर दी बल्क, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन इन बल्क। डीजल एंड पेट्रोल का डोमिनेंस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत छोटे फ्रैक्शन में भी अडॉप्ट की गई हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांजिशन करना टू लो एमिशन फ्यूल्स, एंड साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना टू कोप दिस पोल्यूशन। हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, हो भी रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक चैलेंज इम्पोज कर सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी को चैलेंज करता है। सो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। कैग 1989 बैच IS ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश कैडर, के संजय मूर्ति। He has assumed the charge as CAG of India. तो उनका रोल क्या होता है कैग का? He or she is responsible for auditing the accounts of the union and state government entities, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। तो ऑडिटिंग में बेसिकली रोल होता है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, उनको ऑडिट करने में, रिपोर्ट करने में उनका रोल होता है, रिपोर्टिंग द अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट। दूसरा फिर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो फिर कैग का रिपोर्ट को यूज करके दे मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। हम्म। इसलिए कैग को बोला जाता है फ्रेंड एंड फिलोसफर और द फ्रेंड एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री फिलोसोफर। कमेटी, PAC है बाकी सब। हम्म। हम्म। Then sea and space should be subjects of cooperation, not conflict. PM Modi, he calls for global unity in terms of space, in terms of maritime cooperation, ताकि कोलैबोरेशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर पाए। जो
रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनको यूटिलाइज करें फॉर ग्लोबल गुड। सो नॉर्थ एंड साउथ में भी जो डिवाइड है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाए, उसको हम ब्रिज कर पाए, डेवलपिंग नेशंस का जो रोल है उसको स्ट्रेंथन कर पाए इन दी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग फोरम। So he said this at the second India CARICOM summit in Guyana, and इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज किया टू प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म, इंक्लूसिविटी प्रमोट करना ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर। तो पीस के लिए और इक्वल यूज, इक्विटेबल यूज के लिए ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज करना जरूरी है। तो उसमें इंडिया की लीडरशिप भी ये दिखाता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट मंत्रा ऑफ इंडिया, तो एम्पलीफाई इंडिया करता है। गुआना इसमें इम्पोर्टेंट है हम्म। कि इंडिया गुआना एक और है, क्योंकि गुआना में बहुत सारे इंडेंजर लेबर थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हम्म। तो इंडियन हेरिटेज, फिर पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां पर रहते हैं। हम्म। और दूसरा जो गुआना जो है वो एक तरह से नियर टू वेनेजुएला है, तो उनके पास नेचुरल गैसेस, ऑयल एक्सप्लोरेशन का चांसेस है, इसलिए इंडिया डाइवर्सिफिकेशन में बात कर। गुआना के थ्रू जो इंडियन का सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका, या बोल सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में फोकस करेगा। तो एक की वर्ड एक और है कि कैरिकॉम। तो हम्म। बेसिकली कैरेबियन जो आइलैंड्स है उसमें जो कंट्रीज है उसका एसोसिएशन है कैरिकॉम। फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज हो गया, हाइती हो गया, और भी। तो इट कैन आल्सो एक्ट एज अ ब्रिज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका। हम्म। हम्म। Then next, leaner, faster, and fairer. How to move towards a responsive justice system. तो इसमें कोर्ट अगर सुप्रीम फंक्शनिंग कोर्ट का को। बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 से ऊपर केसेस है जो पेंडिंग है। हाई कोर्ट में कुछ लाख में, और फिर ओवरऑल में 4 करोड़ का, 3.5 करोड़ के आसपास है। तो हाँ, 4.5 करोड़, 45 मिलियन केसेस। तो 688 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। करप्शन का इशू है, नेपोटिज्म है। दूसरा कि जो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो ओल्ड पेडागोगी स्ट्रक्चर पे चलता है, इसलिए ई कोड का फोकस करना चाहिए। शॉर्टेज को पूरा करना चाहिए, 21% शॉर्टेज है, उसको पूरा करना चाहिए। ई फाइलिंग सिस्टम हो गया, इसमें डिजिटाइजेशन हो गया। नॉन जुडिशियल स्टाफ जब भी बात करते हैं हम जैसे हमेशा नॉन जुडिशियल बात नहीं करते हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे टाइप राइटर होते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं, और भी एस्पेक्ट जो हेल्प करते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, सब कोई। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, उसका डीकोलोनाइजेशन का बात करते हैं तो बीएनएस आ गया। हम्म। फिर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो उसके अंदर में आर्बिट्रेशन पे फोकस करना चाहिए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बात करते हैं। सो तीन मेजर चैलेंजेस है, एक तो बैकलॉग है, एक डिले है, और स्टाफ शॉर्टेज है। हाँ। Then trust of the farmers. There is need for new ideas and solution. Need to address the agriculture and innovative policy. फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जा सके। फंडिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जो ट्रस्ट है इन दी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वो डिक्लाइन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये सारे कंसर्न्स जो फार्मर्स के हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड हैं। सो लॉन्ग टर्म में भी ये इम्पैक्ट डालेंगे।
जैसे कि जैसे साइंटिफिक फर्टिलाइजर का बात हो रहा सोल्यूशन। है, हम्म। फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल, क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स का बात होता है। और भी जब बात करते हैं एमएसपी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप सीड पे फोकस करेंगे, क्लाइमेट रेसिलिएंट सीड हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, हाउ टू स्टॉप रेसिड्यू बर्निंग, फार्म इक्विपमेंट का बात करेंगे, फार्म रिफॉर्म का बात करेंगे। फिर दूसरा की डिजिटाइजेशन, जैसे ड्रोन दीदी का रूल आ गया, उस पर बात करेंगे। फिर कैसे जो फार्मर्स है वो कैसे विलेज एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्म इक्विपमेंट और फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा और भी क्या काम कर सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट द पीपल मस्ट केयर। पब्लिक हेल्थ इंडिया के अंदर कि क्या उसे देखा जाता है एज एन इंडिविजुअल कंसर्न rather than a collective opportunity। पोल्यूशन का चैलेंज, पुअर सैनिटेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, फीजिबल नहीं है हेल्थ केयर सेक्टर, 3 ईयर लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। उसके अलावा ये दिखाता है कहीं ना कहीं दैट देयर इज कलेक्टिव अवेयरनेस और ज्यादा होनी चाहिए अबाउट पब्लिक हेल्थ। रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि वो लिंक्ड है पोल्यूशन से। सो कैसे बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज हम लेके आए, माइंडसेट कैसे शिफ्ट करें, जहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, ताकि डिजीज बर्डन हम कम कर पाए, एक्शन ड्रिवन पॉलिसीज लेके आ पाए, रेमेडियल अप्रोच। जैसे बीजिंग का एग्जांपल दिया जा रहा है इन 2014, इट ब्रॉट डाउन द एयर पोल्यूशन अराउंड 60 to 70%। मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजीज का उन्होंने यूज किया। व्हीकलर एमिशंस को कंट्रोल किया, रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्चर्स को जोड़ा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया फॉर टैकलिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल। पब्लिक एंड मीडिया अवेयरनेस हो गया, एंड ऑफ पाइप मेथड फॉर एग्जांपल। बीजिंग बात करते हैं कि लोकल बॉडी, हमारे यहाँ जो लोकल बॉडी है उनको इतना एम्पावरमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू बीजिंग, तो वो फोकस करते हैं। प्लस सिर्फ और सिर्फ पेनलाइजेशन एग्जाम्पल नहीं है कि बंद कर दो, वो ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, ईवीज पर जाने के लिए, तो हाईएस्ट अडॉप्शन रेट है वर्ल्ड में चाइना का ईवी में। तो IQ एयर वेबसाइट वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वेब पेज है। साइड में देखो, इसमें बोला जा रहा है कि ईज ऑफ स्टेट मस्ट ब्रीथिंग। इंश्योर ईज ऑफ ब्रीदिंग। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, वैसे ईज ऑफ ब्रीदिंग एक इंडेक्स आना चाहिए जिसमें हर एक स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट हो। हर एक स्टेट चाहे कि उनके जो पोल्यूशन इंडेक्स है उसमें कम से कम वो काम कर सके। तो अलग अलग इसमें टेक्नोलॉजी की बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू रिड्यूस द सल्फर डीसल्फराइजेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, SO2 कम होगा। फिर पार्टिकुलर मैटर हो गया, उस मैटर को कम करने के लिए कोल प्लांट्स, उसमें फिर टेक्नोलॉजी यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में जो टारगेट है कि 10 PM 10 बाय 40% 2026 तक कम करना होगा। पैडी कल्टीवेशन से लेकर के वेहिकुलर इमिशन हो गया, डस्ट पॉल्यूशन हो गया, और थर्मल पावर प्लांट।
ये चार, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन, ये चार पांच एक्टिविटीज के कारण दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। इस पर ही फोकस ज्यादा करेंगे। स्ट्रीमलाइनिंग कर सकते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे वैसे ही आप ईज ऑफ ब्रीदिंग इंडेक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर में स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होगा। और इंडिया को चाइना या यूएस के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, अपना मैंडेट है इसका, उसके हिसाब से लॉन्च कर सकते हैं। चाहे वो बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेजर हो गया जीआरएपी हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया। एक ऐप बनाएंगे, ग्रीन एयर ऐप, दिल्ली के अंदर में, जिसे आप जाकर के उसको ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है एक तरह से। एयर शेड पे फोकस कर सकते हैं, सस्टेनेबल एयर शेड मैकेनिज्म। रोड डस्ट को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, उसके अंदर में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो सकता है। रेसिडुअल बर्निंग होता है, उसमें टॉप डाइवर्सिफिकेशन के कारण रेसिडुअल बर्निंग कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ है। ग्रीन दिल्ली ऐप। हाँ। What is the Global Alliance Against Hunger and Poverty that is launched at G20? G20 अभी रियो में हुआ। हम्म पिछले साल G20 हुआ था इंडिया में, इस बार ब्राजील में हुआ। तो वो बात कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू द इराडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। एसडीजी गोल के अंदर में आता है टू अचीव फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन बाय 2030। लेकिन इशू क्या है कि अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ है हर एक जगह पे। वर्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के अंदर में ज्यादा बर्डन क्रिएट होता है। क्लाइमेट चेंज और एक तरह से जो डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसको बढ़ाता है। दैट इज वाई देयर इज नीड फॉर ग्लोबल सस्टेन्ड एफर्ट, ग्लोबल कोलैबोरेशन टू डील विद हंगर एंड पॉवर्टी। ऐसे 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़ लोग अभी भी दे लिव इन हंगर बाय 2030। तो इसे बोला है कि जो लॉन्च किया जाएगा, इट विल फोकस ऑन सोशल, रेशियल, जेंडर इनइक्वालिटी जो डीपेन हुआ है। अलायंस काम करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्री नहीं रहेंगे, वो नॉन गवर्नमेंटल भी रहेंगे। फिलेंथ्रोपिक हो गया, एनजीओ हो गया, पब्लिक पॉलिसीज को हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बास्केट फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू न्यू एरिया से टारगेट करेंगे, जैसे कैश ट्रांसफर हो गया, फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो गया, सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन हो गया, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन हो गया, वाटर एक्सेस, ऐसे वॉश स्कीम हो गया, ऐसे टाइप कुछ और प्रमोट किया, स्कूल मील्स हो गया जो इंडिया करती है। और जो फंडिंग होगा, इट विल बी डन बाय एफएओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। इट विल बी हेडक्वार्टर इन ब्रासीलिया एंड अदर ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो जो ग्लोबल अलायंस है हंगर एंड पॉवर्टी, इट इज स्पेसिफिक थिंग अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी। इसमें जो भी मैंडेट किया जा रहा है वो ऑलरेडी इंडिया कर ही रहा है। जैसे स्कूल मील्स हो गया, फार्म सपोर्ट हो गया, सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम हो गया, मैटरनल मातृत्व योजना, अर्ली चाइल्डहुड आईसीडीएस हो गया, वाटर एक्सेस जल शक्ति हो गया, स्कूल मिल में मिड डे मील का बात हो गया, कैश ट्रांसफर, डीबीटी कर ही रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ रोल प्ले कर सकता है। वो बाकी लोगों को समझा सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है विद रिगार्डिंग टू द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। yes. India's cotton sector challenges हैं अभी भी। पेस्ट से रिलेटेड पेस्ट इन्फेस्टेशन, यील्ड डिक्लाइन हो रही है, फार्मर डिस्ट्रेस है, पेस्ट मोस्टली अटैक जो जैसे कॉटन होता है, इट इज पिल्को। इन ब्लैक हाँ। सॉइल, इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, और गुजरात हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन में। हम्म 23-24 में कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है $10.4 बिलियन।
रॉ कॉटन $1.1 बिलियन। इंडिया ने बोला कि 2030 तक हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन। क्या वो अचीवेबल है? इशू क्या क्या है? मैन मेड फाइबर, वहां से आ रहा है, यील्ड कम हो जाता है। फिर जो पिंक बॉलवर्ड वॉर्म होता है, इट ऑल्सो इम्पैक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कॉटन बिल्स। टेक्सटाइल क्लाइमेट चेंज मार्केट का जो है चैलेंज है। वो $165 बिलियन है, जो 350 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो टेक्सटाइल मार्केट है वो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग मैन मेड फाइबर डिपेंडेंट है। अब मैन मेड फाइबर जो है वो भी इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। दूसरा चीज कि जो कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, उसको भी हम लोग बोले कि एफटीए साइन किए हैं उसके साथ भी। तो क्या होता है कि बांग्लादेश जो है वो मैन मेड फाइबर इंपोर्ट करता है चाइना से, और वही सेम चीज को टेक्सटाइल में कन्वर्ट करके हमें बेचता है। लेकिन हम जब इंपोर्ट करते हैं चाइना से तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं, तो यहाँ पर डिस्पैरिटी हो जाता है। हम्म। दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जीएम कॉटन, क्योंकि उसमें भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएम कॉटन प्रमोट कर रहे हैं। उसके कारण क्या होता है कि ओवरऑल जो कॉटन है उसमें होमोनाइजेशन ऑफ द सेम स्पीसीज पे फोकस करते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब एक कोई स्पीसीज ऑफ जीएम कॉटन इट बिकम्स रेजिस्टेंस, पिंक वो जो बॉलवर्ड वॉर्म है, इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द जीएम क्रॉप। तो अगेन यू हैव टू यूज केमिकल स्प्रे एंड अदर काइंड ऑफ थिंग। तो जीईएसी, उसके अंदर में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि सेम स्पीसीज को यूज नहीं करे और भी स्पीसीज को यूज करे बीटी कॉटन में। तो आर एंड डी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करना है, सुपीरियर हाइब्रिड को फोकस करना है, हर्बिसाइड टॉलरेंट टेक्नोलॉजी हो गया, हाई डेंसिटी प्लांटेशन। दूसरा कि प्राइवेट सीड कंपनीज है वहां पर मोनोपोली सीड एक्ट के अंदर में। जीएम कॉटन क्रॉप है, डेवलपमेंट बोर्ड है। अब जीएम क्रॉप है वो तो हर कोई फार्मर्स तो नहीं इसको कंजर्व कर सकते, जीएम क्रॉप को बना हम्म। सकते हैं, वो तो डिपेंडेंट होगा ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के रूल बढ़ जाते हैं। लीगल सीड मार्केट में 45 मिलियन सीड पैकेट सोल्ड होते हैं, लेकिन 7 मिलियन इलीगली सोल्ड होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन इरिगेशन, कैनोपी मैनेजमेंट, प्रिसीजन फार्मिंग, मैकेनाइज्ड प्लांटिंग, अलग अलग फेनोटाइप्स, जेनेटिक मेकअप पर फोकस करना चाहिए ताकि डेंसिटी बढ़े और डाइवर्सिटी बढ़े, यील्ड बढ़ेगा। हम्म। अडानी, कॉटन यूएस सोलर स्टॉर्म। इसलिए इन पर एक प्रोसिक्यूटर स्लैप किए ब्राइबरी केस चार्जेस ऑन अडानी एंड 7 अदर्स। तो वो बेसिकली यूएस के अंदर में लॉबी जो है ना वो इलीगल है वहां लॉबी। लेकिन उन्होंने इसलिए किया ताकि, ऐसे उनका कहना ये था कि अडानी ने कुछ इन्वेस्टर बाकी सबको फीस दिया था, ऑफिशियल को फीस दिया था, सो दैट वो सोलर कॉन्ट्रैक्ट जीत सके। बट ये इंडिया का भी जो इमेज है कॉर्पोरेट सेक्टर वाला उसको इम्पैक्ट कर सकता है ना। ऐसे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डेमोक्रेटिक पार्टी अभी हट रहे हैं, तो वो भी एक तरह से गूगल के ऊपर भी सूट लगा है। हम्म। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं अडानी, यहाँ पर इसको इस एंगल से सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि व्हाई ही इज बीन टारगेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन। अगर उसी की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे कॉर्पोरेट इंडिया में है जो, लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि वो हाइफा पोर्ट में इन्वेस्ट किए थे, वो कागू पोर्ट म्यांमार में इन्वेस्ट किए थे। तो बेसिकली ही इज अ जायंट इन पोर्ट इन्वेस्टमेंट। और जो भी स्ट्रैटेजिक एरियाज में इनका रोल आता है, जैसे ही रोल बढ़ता है यू आर इन द रडार एंड यू आर टारगेटेड स्लोली। क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट फीस का बात हो रहा है हर्ष मनी का, वो इंडियन ऑफिशियल से डील किया जा रहा है। तो इसमें एक और इशू आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से
आप यूएस के अंदर में चार्ज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल होता, तब मानते हैं कि यूएस में जा करके आप पैसा दे रहे हैं और उसको ब्राइब कर रहे हैं। इंडिया में कोई भी कुछ कर रहा है, करप्शन कुछ भी कर रहा है, तो वो इंडियन कोर्ट का दायरे में आता है, और यूएस के अंदर दायरे में नहीं आता है, एक तरह से। हम्म। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि डिफेंडेंट टू इलैबोरेट स्कीम टू ब्राइब द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर। तो ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस लिखा है, या यूएस गवर्नमेंट ऑफिस होता है ना, तब मानते हैं कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, कि वो फंस रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस को ब्राइब कर रहे हैं, तो फिर इंडियन कोर्ट का मैंडेट है, यहाँ सॉवरेंटी का इशू आता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यहाँ चलेंगे, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि यूएस वाला एससीसी बात करेगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का बात करें, टेस्ला यूएस के अंदर में कोई ऑफिशियल को ब्राइब किया और इंडिया में उसका केस चल रहा है, वो ऐसा नहीं हो हम्म। सकता ना। हम्म। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ ये नहीं है ना, ये पूरा जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसमें आता है। हम्म। Stable inflation bedrock for sustained growth. स्टेबल इन्फ्लेशन रहेगा तो परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, ये भी स्टेबल रहेगा। हाई इन्फ्लेशन रहता है तो वल्नरेबल सेक्शन, जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जो स्टेबिलिटी है उसको प्रायोरिटाइज करना है ओवर ग्रोथ स्टिमुलेशन। सो जो रेपो रेट भी है वो भी स्टेडी है अभी, 6.5% पे। इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू स्मॉलर सिटीज। तो प्लग एंड प्ले मॉडल फैसिलिटीज रहेगा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, इसका 50,000 से 1 लाख है, 20,000 से 50,000 है। तो जो हम लोग टीयर 2 टीयर 3 बोलते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी डेफिनेशन में चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड सिस्टम है। टीयर 2 हम्म। टीयर 3 सिटीज, आजकल टीयर 2 सिटीज में भी 2 लाख 50 50 5 लाख 10 लाख पॉपुलेशन है। और प्लस टीयर 2 टीयर 3 को जोड़ेंगे टीयर 1 के साथ, तो देयर विल बी इको सिस्टम जो सस्टेनेबल रहेगा, स्मार्ट इंडस्ट्री सिटीज। तो उससे क्या होगा कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, इट विल इट विल अर्बनाइज इन अ मोर एफिशिएंट और सस्टेनेबल मैनर। अर्बन जो रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन माइग्रेशन कम होगा, वहीं पर काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा एस्पेक्ट है। हम्म। एंड कैटेगराइजेशन की वजह से बहुत सारी स्कीम्स भी है ना जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती फिर वहां पे। हाँ, उसको भी हम्म। कर सकते हैं। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। जैसे अलग अलग इसमें प्रिवेंटिंग। दिया हुआ है कि गोल्डमैन सैक्स पर लगा था ब्राइब, $1 बिलियन दिया था इन मलेशिया एंड यूए टू ऑब्टेन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर गोल्डमैन सैक्स पे फिर लगा था, हम्म। रशियन टेलीकम्युनिकेशन पे लगा था, सीमेंस पे लगा था। तो ये सब एग्जांपल है कैसे आप कुछ कुछ कंट्री के अंदर में कॉर्पोरेट का ग्रीड इसमें दिखा है, कॉर्पोरेट का एथिकल स्टैंडर्ड दिखा है, एट द सेम टाइम जियो पॉलिटिकल राइवलरी है कि सेम प्रोजेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल केनिया, तो केनिया अभी जैसी उन्होंने कैंसिल किया अडानी का पूरा पूरा प्रोजेक्ट, उसके पहले ही जो प्रेसिडेंट थे वो दे हैड गॉन टू द चाइना, और वो सेटल कर चुके थे बीआरए प्रोजेक्ट के अंदर में। तो कहीं ना कहीं वो भी एक एस्पेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन, सिर्फ और सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड में नहीं। म्यांमार पोर्ट सेल हो गया, बांग्लादेश पावर, बांग्लादेश में भी अडानी पावर है रिड्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द नेबरिंग बांग्लादेश। तो ये हम्म। क्यों रिड्यूस किए नेबरिंग बांग्लादेश, तो ये क्वेश्चन उठाना चाहिए। अचानक से मन किया तो रिड्यूस नहीं किए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के कि वो रिड्यूस कर सके, ताकि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटीज को या फिर उनका जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस कर देंगे। तो
तो अडानी जो पावर है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है, दे वर्क इन अ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन टू अचीव द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि सरकार बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हर कंट्री में। लग्जरी वेडिंग सिस्टम, तो 4.8 मिलियन वेडिंग विल टेक प्लेस इन दिस सीजन। एवरेज वेडिंग है 5.7 वेडिंग फोटोग्राफर दिया। 4 करोड़ प्लस डोमेस्टिक लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग। तो ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया, कमर्शलाइजेशन ऑफ वेडिंग, लग्जरी वेडिंग की तरफ जा रहे हैं। और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रहा है, तो आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ते जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड होते जा रहा है। और धीरे धीरे वेडिंग से रिलेटेड कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वेडिंग होता था अपने जगह पे, अब है कि मैनेजर होता है जो वेडिंग प्लान करता है, हर एक चीज वही प्लान करता है। तो उसे कहीं ना कहीं एक जो कनेक्टिविटी होता है विथ रिगार्डिंग टू द रिचुअल, विथ रिगार्डिंग टू द ओवरऑल प्रोसेसेस, वो कहीं ना कहीं दूर रहता है। Hmm. Why विंडफॉल टैक्स, different? वो टैक्स होता है जब व्हेन इट इज लेवाइड ऑन सर्टेन वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल प्रोडक्ट, और उस पर लेते। फॉर एग्जांपल ऑयल, अचानक से ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनीज का। तो सरकार चाहते हैं कि टैक्स यूज करे, ताकि जब ऑयल का प्राइस कम हो या बाद में भी, तब इट क्रिएट्स अ बफर on specific product in specific industry when economic condition allows above average profit to be generated by these product। example, ऑयल, ऑयल कंपनीज। इसलिए विंडफॉल गेन टैक्स को यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर होता है, गवर्नमेंट कहाँ पे करते हैं, इसमें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल रिफाइनिंग, टर्बाइन फ्यूल एक्सेट्रा। ICC issues arrest warrant. सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है कि अभी ऐसी बिडेन पावर से हारे हैं और फिर वो ट्रम्प में हो रहा है अचानक से, 1 महीने के अंदर ही दे सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस। इसी समय आईसीसी इश्यूज वारंट अगेंस्ट द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। और इसलिए कारण है कि इंडिया डिड नॉट सपोर्ट आईसीसी, क्योंकि जो आईसीसी का मैंडेट है, रोम स्टैट्यूट का मैंडेट है, वो इट इज ए जेनोसाइड कन्वेंशन 2.2। और यहाँ पर है कि इंडिया और चाइना, इवन रशिया, इवन यूएस, कोई भी आईसीसी को सपोर्ट नहीं करते, रेटिफाई नहीं किया, इंडिया में नहीं किया। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में मॉइज्म के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन अगेंस्ट द मॉइस्ट एरियाज, तो आपके ऊपर जेनोसाइड केस लग सकते हैं। एज आईपीएस ऑफिसर आपके ऊपर जेनोसाइड केस लगते हैं ना आईसीसी, आपका इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो सकता है, केस लग सकता है। तो ये चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आईसीसी, इंडिया ने स्टैंड लिया था कि आईसीसी का मैंडेट तभी होना चाहिए जब केस स्पेसिफिक आए। और हर एक कंट्री इज ए सॉवरेन कंट्री, उसके जो स्टेट है ऑलरेडी वहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ऑलरेडी लीगल प्रोसेस है जो फॉलो होना चाहिए। अगर कोई भी जेनोसाइड हो रहा है या फिर प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी है जिसको हम डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजरात हो गया, एंटी सिख हो गया, इवन और भी एरियाज हम देखते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल इंडिया क्यों नहीं है आईसीसी में, बोल सकते Hmm. हैं। रशिया लॉन्चेस फर्स्ट आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नाम में इंटर कॉन्टिनेंटल वो मिसाइल है, लॉन्ग डिस्टेंस, स्पीड, हाइपरसोनिक भी है, और इसमें वो न्यूक्लियर वॉर हेड भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं था अभी। इट वाज जस्ट टू सेंड मैसेज टू द नाटो कि अगर आप ज्यादा, अब इफ यू विल यूज यूक्रेनियन टेरिटरी फॉर योर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, वी विल आल्सो, Hmm. we can also, we have also the capability to use ICBM। How the North is shaping India's smog economy.
तो नॉर्थ में इट इज शेपिंग। तो न्यू होटल्स खुल रहा है, कसौल, मसूरी, उत्तराखंड, वहां पर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। रियल स्टेट अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया से, जो दिल्ली अराउंड रीजन है, उस दूसरे जगह जा रहे हैं, जहां पर हिली एरियाज हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर दूसरे हिंटरलैंड हो गई। ड्रग्स समर होम का की तरह। एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, वेंटिलेटर हो गया, एयर प्योरीफायर बढ़ा है, 15% ग्रो है हर साल, हर साल। बोलो। जैसे समर समर होम। होम है। मैं बोल इस पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि इसका जो स्मोक का जो इम्पैक्ट है, वो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट हिली एरिया में पड़ेगा, और वहां पर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म। हम्म। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं कि बस वहां से हट के कहीं और चल जाए, उसको ठीक करना है। तो हम लोग ऊपर डिस्कस करेंगे। एक न्यू मार्केट स्पेस खुला है अभी ड्रग्स का। उसके बाद फिर 95 मार्क्स हो गया, हेपा फिल्टर जो एयर प्योरीफायर में लगता है उसका। हम्म। चाइना जैसे बात करते थे बर्निंग क्रॉप वेस्ट के खिलाफ, वो एक्सेल लिए लार्ज फार्म बर्निंग क्रॉप कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रियल साइट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट। सीपीसीपी सेकेंड करो। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, हम्म। सीवियर प्लस कैटेगरी में। सेंटर वर्क कार पुलिंग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज, ताकि एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। न्यू दिल्ली में मेट्रो है तब ऐसा हाल है, मेट्रो नहीं होता तो कैसे होता। नेक्स्ट। इसलिए हमने आज बात भी की थी कि सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी होनी चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ सेक्टर को जोड़ेगी। न्यू सीपीआई में स्पोर्ट प्राइस डेटा फ्रॉम ई कॉमर्स। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, जो बात करता है सर्विस सर्विस सेक्टर को भी लेता है और मैन्युफैक्चरिंग को भी लेता है, सबको लेता है। इसके अंदर बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं। वो बास्केट ऑफ गुड डिसाइड पहले से होता है 400, हाँ 400 अभी नहीं, पहले बास्केट ऑफ गुड्स होता है, उसमें से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है पूरा। तो इट विल टेक अराउंड 400 आइटम फ्रॉम 1200 मार्केट्स। उससे फोरकास्टिंग में आसानी होगा सीपीआई डेटा। फॉर एग्जाम्पल बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकेट हो गया, सब जगह से ले जा हम्म। सकते हैं इसको, टीयर 1, टीयर 2, 3। और सीपीआई क्यों हेल्प होगा, सीपीआई से पता लग सकता है कि बेस्ट एनालिसिस हो सकता है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन हो सकता है विद रिगार्ड टू द कौन कौन से आइटम्स अभी कितने पैसे में मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर प्राइसेस डिफरेंसेस है। उसके हिसाब से जो एग्री स्टार्टअप है, इट विल फोकस ऑन ई वेयर हाउसिंग मैकेनिज्म। वो ई कॉमर्स और लॉन्ग डिस्टेंस फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही सामान 50 रुपए में मिल रहा है, 20 किलोमीटर, वो 20-30 किलोमीटर पर वही सामान 10 रुपए में मिल रहा है। तो जो आदमी 50 में बेच रहा है, वो जाएगा फिर 10 में खरीद के आएगा वहां से कम से कम प्राइस डिस्पैरिटी कम हो सके, इक्विटी प्रमोट हो सके। दूसरा, वेजेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो डीए जो बढ़ता है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। मनरेगा का जो एक्स्ट्रा, जो मिनिमम वेजेस का बात करते हैं उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। सीपीआई से फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म जो आरबीआई का है, मॉनेटरी पॉलिसी बाकी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो स्टैंड रहता है विद काइंड ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट एज ए इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया। पहले डब्ल्यूपीआई यूज करता है, सीपीआई यूज करता हम्म। है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी था कि ग्रीन हाइड्रोजन हब 5 मिलियन टन 2030 तक बनाना है, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है उसमें। अभी उसके हिसाब से अलग अलग फैसिलिटी बनाया जा रहा है नियर विशाखापट्टनम। और ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर, कीवर्ड इलेक्ट्रोलाइजर, फ्यूल सेल हो गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन बनाना नहीं है, उसका पूरा इकोसिस्टम है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, मतलब कि पहले से बना के लाइए, वहां पे बस ऐड ऑन कर दीजिए। हम्म। ग्रीन मेथनॉल हो गया, ग्रीन अमोनिया हो गया, ये बाई प्रोडक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का।
तो एक इम्पोर्टेंट है विशाखापट्टनम। इंडिया में 100 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कैसे करें 47 तक, मतलब 10 करोड़, अभी सिर्फ 1 करोड़ भी नहीं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोल्यूशन। सेकंड है हाइजीन, कि आपका जो वीडियोस वायरल होता है ट्विटर में, हम्म। इंस्टाग्राम में, एक फूड अंकल है कलकत्ता वाले, उनका फेमस है वीडियो, हर जगह दिखता है कि कैसे आप यूज करते हैं। तो बेसिकली FSSAI का रोल आता है, हाइजीन प्रमोशन कैसे करेंगे, क्योंकि हाइजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट, क्योंकि मास्क चाहिए, हाथ में ग्लव चाहिए, उसका पैसा कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग फूड रेटिंग सिस्टम कर सकते हैं हर एक सिटी के अंदर में, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहे, वहाँ फूड रेटिंग रहे, उसके हिसाब से चले। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उस पर फोकस करें। होटल मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोवा, गोवा में फॉरेन टूरिस्ट धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हरासमेंट है बाय द लोकल टैक्सीज, वहां पर एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हैं। जो आप लोग थाईलैंड जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम में चेंजेस आना जरूरी है। तो आप पोल्यूशन, मतलब ओवर पॉपुलेशन के कारण पोल्यूशन बढ़ जाता है। एक जो एथिकल टेक होना चाहिए बाय द टूरिस्ट, वो ही फॉलो नहीं करते हैं, कहीं भी यूज करके फेंक देते हैं। तो एक जो डेकोरम है एज ए टूरिज्म, उस पे प्रमोट, डेकोरम प्रमोट करना चाहिए। फिर हम लोग टूरिस्ट को प्रमोट जब करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट को, तो अलग अलग सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, रामायण सर्किट है, उसमें हो गया प्रमोट कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, MICE, बिजनेस टूरिज्म में बात हो जाता है। हेल्थ एंड इको वेलनेस टूरिज्म। टूरिज्म, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु में अभी प्रिंस चार्ल्स और उनकी वाइफ आई थी, जो लोग की विजिट था इंडिया में, पता नहीं चला था। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने आए थे अपना, अभी 1 महीना पहले। तो वो भी एक एस्पेक्ट आ सकता है। एडवेंचर और दूसरा टूरिज्म चीज एंड की, इको टूरिज्म भी। फॉरेनर मतलब सिर्फ नहीं गोरा चमड़ी, व्हाइट लोग, फॉरेनर मतलब कि अफ्रीका से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी फॉरेनर कहलाएंगे। लेकिन इंडिया क्या रहता है कि जो अफ्रीकन से आते हैं उनको कोट एंड कोट फॉरेनर समाज के अंदर में ट्रीट नहीं किया जाता, उनको एज अ डार्क स्किन ब्लैक देखा जाता है। श्रीलंका से वो भी फॉरेनर है, जो थाईलैंड से आ रहे हैं वो तो है। तो बेसिकली हम लोग का जो स्टैंड है विथ रिगार्ड टू फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो 100 रुपए का चीज 500 में बेचते हैं। तो ओवरऑल जो एक एस्पेक्ट होता है कि कैसे काम करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसमें दिखता है हरासमेंट का भी इशू है, फोटो खिंचाने चले जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई नाम ही नहीं है। तो जनरली उस पर फोकस करना चाहिए। वो तभी होगा जब ओवरऑल सिविक, नेशनल सिविक एस्पेक्ट बढ़ेगा, और फिर हाइजीन फोकस करेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, तभी जाके 100 मिलियन, सॉफ्ट पावर से नहीं आने वाले 100 मिलियन। हम्म। DPI serves as a catalyst for innovation and competition. तो डिजिटल Public पब्लिक infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बात हो रहा है कि वुड लीड टू मोनोपलाइजेशन एंड स्ट्राइव प्राइवेट इनोवेशन बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म। ये भी एक अलग क्रिटिसिज्म है इसका। UPI हो गया, या फिर डिजी स्टैक का बात करते हैं, कोविन हो गया, तो अलग अलग ONDC हो गया। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी है ही वो प्लेटफॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल फोन पे और पेटीएम था ही, फॉर एग्जाम्पल E-कॉमर्स था ही, लेकिन उसको मोनोपोली डुओपोली को तोड़ने के लिए ONDC लाई है। फिर रुपए लाया गया मास्टर कार्ड और वीजा को तोड़ने के लिए। BSNL का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एयरटेल और जियो अपना बढ़ाते आ रहे हैं, 3,900 हो गया साल भर का डेटा का प्राइसेस हो गया। तो जनरली बोला जाए तो मोनोपोली डिगोपोली को तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहे हर एक फील्ड के अंदर में, कम से कम एक इंस्टीट्यूशन। साउथ कोरिया में टूरिज्म सिर्फ के प्रॉपर के ड्रामा से नहीं बढ़ रहा है, उसका अपना साउथ कोरिया भी वन ऑफ द, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है रेसिस्ट, कोट एंड कोट, थोड़ा सा एथनिक रेसिज्म वहां पर है। लेकिन तब भी वहां प्रमोट हो रहा है, क्योंकि वहां पर साफ है, हाइजीन है, वहां पर बेसिकली एवरेज इनकम ज्यादा है, तो ओवरऑल एस्थेटिक ज्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू अर्बनाइजेशन जो प्लानिंग इंडिया में होता है। दूसरा चीज जो के पॉप ग्रेड ड्रामा है वो बस सपोर्ट करता है, जो ऑलरेडी बेस बेस स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें सपोर्ट करे।
फॉर एग्जाम्पल डार्क नाइट राइजेस बना था इंडिया में, जो एक फोर्ट था राजस्थान में, प्लस और भी जो राजस्थान में फोर्ट है उनका प्रमोशन होता है मूवीज में, गाना में, तो वहां पर थ्राइव करता है, इवन केरला के अंदर में। लेकिन सेम चीज नहीं बोल सकते बाकी लोग के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम में फोकस करना चाहिए, तभी जाके सॉफ्ट पावर जो है वो हेल्प करे। इकोसिस्टम फोकस नहीं होगा तो सॉफ्ट पावर बस शुरू में हेल्प करेगा, लेकिन रिटेन नहीं करेगा टूरिस्ट को एक बार आएंगे उनका एक्सपीरियंस खराब होगा, अगले बार नहीं आना। अगर चाहते कि अगर रिटेन करे टूरिज्म को, तो ओवरऑल इकोसिस्टम फोकस करे। We have completed for today. Thank you so much, everyone, for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.